मैक्स पेट्स अस्पताल ग्रेटर कैलाश में जानवरों की एमआरआई के लिए होगा उन्नत तकनीक का प्रयोग। इसोएट एशिया पैसिफिक डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने मैक्स पेट्स में लगाया है एशिया पैसिफिक का पहला मैग्निफिको पशुओं के लिए एमआरआई। पशु चिकित्सा इमेजिंग समाधानों में अग्रणी नवपरिवर्तक इसोएट एशिया पैसिफिक डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने आज ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली स्थित मैक्सपेथ अस्पताल में अपनी पहली अत्याधुनिक मैग्निफिको वेट एमआरआई स्थापित करने की घोषणा की। कि हम एक एशिया प्रशांत हमारी जो कोलैबोरेशन जो कंपनी की पहली वेट एमआरआई है। ट्रेनिंग्स इस एमआरआई के लगाने से पशुओं की चिकित्सा में क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आएगा। क्वालिटी जानवरों को ध्यान में रखकर तैयार डिज़ाइन और विशेष एप्लीकेशन के माध्यम से इससे सटीक और एडवांस डायग्नोस्टिक संभव होगी। मनोचिकित्सकों को वेट एमआरआई से जानवरों के न्यूरोलॉजिकल, ऑर्थोपेडिक एवं सॉफ्ट टिश्यू की हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग हो सकेगी। इससे न्यूनतम परेशानी के लिए साथ पूरी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मैक्सपेथ अस्पताल के चीफ वारंटेरियर डॉक्टर कुणाल देव शर्मा ने कहा, मैग्निफिको वेट एमआरआई के साथ अब हम भारत के विश्व स्तरीय डायग्नोस्टिक इमेजिंग उपलब्ध करा सकेंगे। यह पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा कदम है। इसोएट एशिया स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक के कंट्री बिजनेस डायरेक्टर श्री धीरज नासा ने कहा, एशिया पैसिफिक में अपनी तरह की इस पहली मशीन द्वारा उन्नत पशु चिकित्सा तकनीक को सुगम बनाने के हमारी प्रतिबद्धता दिखाती है। इससे पशुओं की देखभाल के मामले में बेहतर नतीजे पाने में मदद मिलेगी। मैक्सपेथ अस्पताल भविष्य में एमआरआई के प्रयोग, प्रशिक्षण एवं छोटे जानवरों की इमेजिंग के क्षेत्र में साझा रिसर्च के लिए पशु चिकित्सा संदर्भ एवं प्रदर्शन केंद्र में रूप में भी काम करेगा। Or RBC people, there is a chance of trainability on MRI machines, and these high institutions which have lots of money and they can generate money, they can focus money for one particular project. If they go in for MRI machine themselves, or the veterinary universities where young graduates they qualify and then they work all over India and in different sectors. So it is something which is going to expand and show its goodness on a wider platform for better diagnosis and utility. And of course, it's not only MRI. The procedures, later on, say whether it's some muscular problem or tendon problem or brain problem or some neurological problem. There has to be a multi-specialization of doctors. MRI is just something to tell you, this is the problem. The problem area, once it is pinpointed, then it is in the hand of the physician or the veterinarians, especially the surgeons or the specialized doctors who can do the rest of the job. So coming times on All India platform. Different types of cancer. So when we are particularly MRI, so first answer to your first question, of course, this machine can be used for tigers, lions, goats, dogs, cats, or even smaller versions, birds and guinea pigs, rabbits. So let's say there is a tumor in the brain or in the spinal cord of a tiger or any animal. It's only possible to detect that with an MRI. Precise location and the nearby anatomical landmarks, which allows you later on to either treat it medically, go in for a biopsy, or to surgically remove it. So you are focusing on diagnostics by the use of MRI, which helps you later on to chart out a treatment plan. Probably a CT scan
may be a good option. If you want to diagnose a heart problem, and if it's a functional heart problem, something to do, for example, like the contractility of the heart, then probably your best choice is going to be an echocardiography, which is an ultrasound of the heart. If there is a tumor in the brain, or if there is a spinal cord compression because of, let's say, a disc prolapse, then your best answer to diagnose that is going to be an MRI. So a knowledge and understanding of which imaging modality to use when, that is very important. And as far as species are concerned, every species is different, and there are specialists for various species. Cat is going to have entirely different set of problems. Exotic animals, they are going to carry a different set of problems. Over here at Max Pets, our focus is entirely ह्यूमंस के अंदर जो बीमारियां हैं, आपको सब सिमिलर बीमारियां डॉग्स, कैट्स, इक्वाइन, घोड़ों में, गाय, भैंस, सब में देखने को मिलती है। जैसे हमारे पास ब्रेन है, उनके पास भी ब्रेन है, हमारे पास हार्ट है, उनके पास भी हार्ट है। एक बड़ी कमाल की बात है कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम में आ रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो गंदे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन रेडिएशन है, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, इंसेक्टिसाइड यूज है, पेस्टिसाइड यूज है, या कोई भी और प्लास्टिक यूज है, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स है, जो भी चीजें हैं जो कहते हैं कि कैंसर या कार्सिनोजेंस हैं, जिसकी वजह से कैंसर ज्यादा हो रहा है, तो वही सारा एक्सपोजर एनिमल्स को भी तो मिल रहा है। एक तो कारण ये हो सकता है कि कार्सिनोजेंस बढ़ रहे हैं, दूसरा एक ये भी है कि डायग्नोस्टिक एबिलिटी बढ़ रही है। तो पहले जो चीज डायग्नोज नहीं होती थी, चाहे वो इंसान था या जानवर था, अब वो चीज डायग्नोज हो पा रही है, तभी हम उसकी ट्रीटमेंट के बारे में सोच पा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। सो ये दो तरीके की का क्वेश्चन था आपका। आई होप ये आंसर जिसमें खाली डॉग, कैट से ये खाली it's not just restricted to dogs and cats. You can use it for any animal, starting from a small little bird to a mouse to guinea pigs, hamsters, rabbits, cats, dogs, even tigers and lions. और उनके बीच में जितने साइज के जानवर आते हैं उन सबको। Of course, MRI is a very important and powerful technology because provide us a lot of insight of human body and veterinary also body and tissue as well. And the Magnifico Vet is a very powerful technology because thanks to Magnifico Vet we can image the lumbar spine of the animal, the neurocranium, and also the joints. And these are very fundamental in the clinical practice of veterinary doctor because they can help them to assess the best diagnosis and provide to the animal the best treatment as well. बेस्ट वार्ता इसलिए है बिकॉज टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, डॉक्टर्स की एजुकेशन अपग्रेड हो रही है, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो ट्रीटमेंट के ऊपर आएगा, वेलनेस ऑफ द एनिमल्स के ऊपर आएगा। फार्मेसी इंडस्ट्री बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी डायग्नोसिस के लिए, चाहे ब्लड सैंपल्स टेस्ट हो रहे हो, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स की टेस्टिंग हो रही है, MRI हो, अल्ट्रासाउंड हो या CT स्कैन हो, द एनाटॉमी विच डिफरेंट स्पीसीज हैव डिफरेंट एनाटॉमीज। आज जो इमेज हम लेते हैं उस इमेज को कंपेयर करेंगे, फिर पता लगेगा कि कहाँ पर क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस इंडिकेट करेगी किसी तरह किसी बीमारी की तरफ, किसी तरह किसी एब्नॉर्मलिटी की तरफ, और उसको ट्रीट करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, या तो मेडिसिन से ठीक होगा या फिर वो सर्जरी के थ्रू ठीक होगा। अब फॉलो अप प्रोसीजर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि प्रोग्नोसिस पुअर है या प्रोग्नोसिस अच्छा है। इसमें डिपेंड एक और चीज़ बहुत ज़्यादा करती है कि एनिमल का पोस्ट सर्जरी या ट्रीटमेंट का जो शेड्यूल बना है वो कितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। बट एक अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी होने की उम्मीद तो हमेशा होनी भी चाहिए और रहती भी है। सबसे बड़ा मोर्टेलिटी रेट कितना होता है? The smaller the pet breed, longer is the lifespan,
और जितना बड़ा या ओबीस डॉग होगा उसका लाइफ अपने आप कम हो जाता है। बट ये देखा गया छोटी वाली जो नस्लें हैं लाइक चिवावा, अंडर 10 kg बॉडी वेट वाली जो हैं, पिकनीज है, ये सारी छोटी वाली ब्रीड जो हैं 14 साल के आसपास जी जाती हैं। हमारे जो इंडियन डॉग्स हैं, इंडीज जिनको कहते हैं, दे आर नॉट स्ट्रे डॉग्स, दे आर ऑल इंडियन कम्युनिटी डॉग्स। इनकी लाइफ जो है वो 16 साल के आसपास तो है ही। पर जो बहुत वेल लुक्ड आफ्टर डॉग्स हैं, जहाँ उन नस्ल्स के अंदर, उन ब्रीड्स के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स नहीं है, उनकी लाइफ 18-20 साल भी देखी गई है, मैक्सिमम 22-23 साल रही है रेयर केसेस में। की लाइफ जो है तकरीबन 350 साल है। सो एनी टर्टल ओनर हैज टू मेक ए विल एंड सेट असाइड सम अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस कि उसके मरने के बाद उस टर्टल की देखरेख कौन करेगा और फाइनेंसेस अवेलेबल होंगे। 350 साल इसके मतलब एक और जनरेशन चेंज हो जाएगी। सो आई मीन एनिमल्स दे हैव दो, उनकी किस्मत अपनी है और अच्छी किस्मत साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ एक डिजीजेस की एलिमेंट बढ़ती जा रही है, जैसे कैंसर है या एक्सीडेंट्स हैं एनिमल्स के, वो प्रॉब्लम कितनी गहरी है उस हिसाब से देखते हैं कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, मिट्रियल वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। अब मिट्रियल वाल्व क्या है, वो एक ब्लड फ्लो को सिटी को एशिया की पहली एमआरआई मैग्निफिको वेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। और इस एमआरआई से नॉट ओनली द स्पाइनल सर्जरीज विल बी बेनिफिटेड, ब्रेन सर्जरीज, जॉइंट सर्जरीज, ये सब सर्जरीज इस एमआरआई की मदद से राइट डायग्नोसिस से प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी पेशेंट के अंदर देख पाएंगे कि सर्जरी कैसी हुई है, सर्जरी कैसे करनी है और सर्जरी कैसे हुई है। एंड इस पे ज़्यादा डॉक्टर कुणाल भी बताएंगे। देखिए, हमारी जो कंपनी है मैक्सपेट्स, इसका एम है क्वालिटी हेल्थ केयर हम एक्सेस बढ़ाएं, इस देश में क्वालिटी वेटनरी हेल्थ केयर का एक्सेस बढ़ाएं। वो बढ़ाने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप है ये, और पूरे वेटनरी फ्रैटर्निटी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है कि एमआरआई वेटनरी स्पेसिफिक एक लॉन्च हो रही है। और इंडिया के अंदर सबसे पहली बार, इनफैक्ट एशिया की फर्स्ट इंस्टॉलेशन है एसॉटे की इस पर्टिकुलर मॉडल को लेके, जो कि सबसे एडवांस्ड मशीन है। सो इंडिया के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है ये, मैक्स पेट्स के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, हर वेटनेरियन के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, और जो पेट पेरेंट्स हैं उनके लिए एक ये हैप्पी मोमेंट है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर उनको गॉड फॉरबिड अगर कभी ज़रूरत